students. I am Chef Achal Bisht from Chandigarh Institute of Hotel Management, Sector 42. Basically, we have come down with a web series to help you down in this pandemic time when all the classes are being not run in the college. We hope you will like this web series. There will be small recipes related to kitchen as well as bakery in this web series. Today, what we are going to make is a normal recipe of white bread. White bread, which is normally consumed in our day-to-day life. I am going to give you a small brief cap of the white bread recipe. For white bread recipe, we require just a few ingredients like refined flour, yeast, salt, sugar, oil and water. Basically, for making any bread product, we have got a very basic standard recipe. If you follow that basic standard recipe, you can make any bread out of that recipe. So the standard basic recipe goes like this. Your flour should be around 100 grams, yeast should be 2.5 grams, salt 1.5 grams, sugar 5 grams, oil 5 ml and water 60 ml. This is the base recipe for making any kind of bread product. If you follow this base recipe, so you can make any kind of bread out of this base recipe. We can make various products like pizza, sweet buns out of this base recipe. So today we are going to make a loaf which is of around 400 grams. So I have converted this recipe according to the weight of the loaf. For making a loaf of 400 grams, I have converted this recipe, multiplied this recipe with 2.5 times. So my refined flour is now 250 grams. My yeast is 6.25 grams, salt is 3.75 grams, sugar is 12.5 grams, oil is 12.5 grams and water is 150 ml. These are the base ingredients required for making of bread. So my dear friends, let us start preparing the bread. For making of bread, first of all, you take the yeast and dissolve this yeast in some quantity of water which is from the recipe only. We will dissolve yeast in small quantity of water which is from the recipe itself. After dissolving the yeast, we could put this yeast water straight away into the flour and sugar into it, along with salt. The first step for making of bread is mixing, that is called as mixing. So what you have to do is don't use both the hands, just use one hand for making the dough. You can use the tips of your finger. You just have to mix all the ingredients together. This step is known as mixing. Precaution which needs to be taken while mixing is you put 75% of the water straight away into the dough. If you put small quantity of water and keep mixing it, it will form small lump formation will be there and it will be difficult to break it down in the longer run. In case the water is less as in this recipe, you can add extra water into it.
पहला स्टेप हमारा मिक्सिंग का है, जहाँ पे कि हमने पानी डालकर बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा बीच में मिक्स कर दिया है एक्सेप्ट ऑयल। तेल हमने इसके अंदर नहीं डालना है। तेल अगर हम शुरू में डाल देंगे तो इसकी ग्लूटेन फॉर्मेशन नहीं होगी, ये ग्लूटेन को शॉर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रेड फूलेगी नहीं। मिक्सिंग हो गई है तो आपका डो इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। एक बार जब आपका डो इकट्ठा हो गया है तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं नीडिंग। नीडिंग हमारे डो के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोटीन इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है। ग्लूटेन नाम के प्रोटीन को स्ट्रेचेबिलिटी देने के लिए हमें नीडिंग करनी पड़ती है, और ये ग्लूटेन की स्ट्रेचेबिलिटी ही बताती है कि हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनेगी, कितनी नरम बनेगी। जितना ज़्यादा हम इसको स्ट्रेच करेंगे उतना हमारा ब्रेड सॉफ्ट बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हमने इसकी स्ट्रेचिंग करी तो ग्लूटेन फट जाएगा और हमारी ब्रेड का जो वॉल्यूम है वो कम आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितना इसको डो को नीड करना है। से डो को दबाएं और दूसरे हाथ से इसको हल्के हाथ से स्ट्रेच करना करें, और स्ट्रेच करने के बाद ये शुरू में हल्का सा टूटेगा, तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसकी स्ट्रेचिंग करते रहना है। इस दौरान अगर आपको लगता है कि मेरा डो थोड़ा टाइट है और ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो आप हल्का पानी इसके अंदर और लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो इसका ग्लूटेन फट जाएगा, और अगर हमने कम स्ट्रेच किया तो हमारी ब्रेड हल्की नहीं बनेगी, क्योंकि ग्लूटेन हवा को ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ग्लूटेन अब डेवलप हो गया है? तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्रेड नीड हो गई है कि नहीं। इसको जब स्ट्रेच करना है आपने चारों तरफ करना है, आगे लेके गए, पीछे लाए, इसको घुमाया और फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच किया, फिर पीछे लेके गए, फिर घुमाया और दूसरी तरफ स्ट्रेच किया। अगर आप देखेंगे इसकी स्किन फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होती जाएगी, जैसे जैसे मैं नीट करता जाऊंगा स्किन फॉर्मेशन इसकी क्लियर होती जाएगी। नीट कर लिया है, इसकी स्किन फॉर्मेशन स्मूथ हो गई है। लास्ट में हमने इसके अंदर तेल डालना है, ऑयल डालना है। अंदर में ऑयल डालना है और इसको भी नीड करना है। जब हम ऑयल डालेंगे तो हल्का सा इसको नीडिंग करते हुए टाइम लगेगा, तो आपने घबराना नहीं है और इसको नीड करते जाना है।
ऑयल पूरे का पूरा इसके अंदर चला गया है। अगर अब आप देखेंगे इसकी स्मूथनेस देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ आपको दिखाई देगा। अब मैंने आपको बोला था एक टेस्ट दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा इसकी नीडिंग प्रॉपर हुई है कि और नीडिंग चाहिए। तो उसके लिए आपने डो का कुछ हिस्सा इस तरह से लेना है और हल्के हाथ से इसको स्ट्रेच करना है। खींचना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से आपने अगर इस तरह की पारदर्शी फिल्म आपको अगर बनाई देती है बिना फटे हुए तो इसका मतलब आपका डो अच्छी तरह नीड हो गया है। और अब आपने इस डो को एक गोलाकार देकर रखना है। गोलाकार बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप उंगलियों को नीचे डालें और इसको घुमाएं तो ये एक बॉल फॉर्मेशन में आ जाएगा। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो नए लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो एक और तरीका है जिससे वो बना सकते हैं। आप कुछ ना करें, आप डो को थोड़ा प्रेस करें और इसको अंदर की तरफ, चारों तरफ से अंदर की तरफ लाएं और इसको घुमाएं और घुमाने के बाद दोनों हाथ से इसको गोल बनाएं। गोला बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। हम उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन वो स्टेप है जहाँ पे खमीर अपना काम करेगा या यीस्ट अपना काम करेगा। यीस्ट जितनी भी शुगर है उसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा, जिससे हमारी ब्रेड में वॉल्यूम आएगा, हल्कापन आएगा। तो अब हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। फर्मेंटेशन का टाइम बेसिकली इज डन एट ए टेम्परेचर ऑफ 26 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली घरों में हमारे पास प्रूफिंग चैम्बर नहीं होता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम अगर सर्दी का टाइम है हम किसी एक बड़े बर्तन में पानी रखकर और उसके ऊपर एक जाली लगाकर और उसके ऊपर इस डो को रख सकते हैं ताकि हल्की भाप उसको, और उसका ढक्कन बंद कर सकते हैं ताकि उसको गर्म हवा मिले और हमारी यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि हमें किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर रखना है 26 to 35 ताकि यीस्ट एक्टिवेशन जल्दी हो। कॉलेज के अंदर हमारे पास प्रूफिंग चैम्बर है, तो अभी हम इस बॉल को एक किसी बॉल में डालकर प्रूफिंग चैम्बर में रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक ये डबल ना हो जाए वॉल्यूम में। ये हमारा प्रूफिंग चैम्बर है। दिस इज बाय कंपनी कॉल्ड एज टोस्टमास्टर। इट इज़ एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी। प्रूफिंग चैम्बर मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी के मिलते हैं। तो दिस प्रूफिंग चैम्बर इज अ कैपेसिटी ऑफ 16 ट्रे। 16 ट्रे आप एक साथ इस प्रूफिंग चैम्बर के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे दो नॉब हैं, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। तो नॉर्मली जब ब्रेड्स होती हैं, ब्रेड्स को जब आप प्रूफिंग चैम्बर करना है तो आपने टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको ग्रो करने के लिए 26 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आप इसको 30 डिग्री तक रखें। और ह्यूमिडिटी शुड बी अराउंड 60 to 70%, 60 से 70% तक ह्यूमिडिटी रखें। और इस डो को अब मैं प्रूफिंग चैम्बर के अंदर रख दूँगा और 15 से 20 मिनट ये डो अब हमारा प्रूफिंग चैम्बर के अंदर रहेगा। तो ये डो फर्मेंटेशन के बाद का डो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अपने वॉल्यूम से डबल हो गया है। और अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चला कि ये डबल हुआ है कि नहीं है, तो इसका एक तरीका है, आप धीरे से इसके अंदर उंगली दबाइए, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही वापस स्प्रिंग बैक कर जाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्मेंटेशन पूरा हो गया। फर्मेंटेशन को दूसरा तरीका जो देखने का वो ये है कि आप इस डो को टेबल के ऊपर डालें और उल्टा कर दीजिए। जब आप इस डो को उल्टा करेंगे, उसको खोलेंगे, तो इसके अंदर एक जाला सा बना आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो इसका मतलब आपकी फर्मेंटेशन पूरी हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम नॉक बैक कहते हैं। नॉक बैक का मतलब है इस डो के अंदर जितनी भी हवा हमने हवा बनाई है उसको बाहर निकालना
और यीस्ट को दोबारा एक्टिवेट करना ताकि हमारी ब्रेड और मुलायम बने। तो नॉक बैक करने के लिए आपने इसको बीच में से बाहर की तरफ दबाना है और फिर बाहर से डो को वापस अंदर की तरफ लाना है और एक बॉल दोबारा बना देनी है। अगर आप देखेंगे इस ब्रेड के अंदर और शाइन आती जा रही है और ये और मुलायम होती जा रही है। अब नॉक बैक के बाद जो अगली स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं बेंच रेस्ट कहते हैं। और ये बेंच रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ग्लूटेन स्ट्रेच हुआ था, हमने हवा निकाल दी है और ग्लूटेन को दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए यह बेंच प्रेस बहुत ज़रूरी है। बेंच प्रेस के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बेंच के ऊपर ही इस डो को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ग्लूटेन दोबारा से स्ट्रेच हो पाए। लेकिन बेंच पे रखने के बाद हम इसको एक गीले डस्टर से दोबारा से कवर कर देंगे ताकि ऊपर कोई स्किन फॉर्मेशन ना हो। जब तक ये बेंच रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना ब्रेड मोल्ड लेंगे और ब्रेड मोल्ड को अच्छी तरह से सब तरफ से ग्रीजिंग करेंगे, ऑयल लगाएंगे। मतलब उसमें आपने चारों तरफ से तेल लगाना है। कोई भी हिस्सा आपने ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्सा इस ब्रेड मोल्ड का ऐसा ना रह जाए जहाँ पे तेल ना लगा हो। और इस तरह से आपने अच्छी तरह से इस ब्रेड मोल्ड में तेल लगाना है। अब इस डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसकी मोल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम मोल्डिंग कहते हैं कि ब्रेड को किस शेप में हमने बनाना है, उस शेप में हम इसकी मोल्डिंग करेंगे। उसे करने से पहले आप हल्का सा टेबल पे ऑयल लगाएं ताकि ये जो ब्रेड का डो है आपका टेबल पे चिपके नहीं। और फिर इसको हल्के हाथ से आप फैलाइए। आपने बहुत ज़्यादा इस डो को खींचना नहीं है और जितना बड़ा आपका मोल्ड है आप ये ध्यान रखिए कि ये उतना इसको स्ट्रेच करना है। जब ये आपका मोल्ड डो स्ट्रेच हो जाएगा, अब प्रेस करने के बाद आप इसको पंच करेंगे। और लास्ट में दोनों कोने पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फिर से पंचिंग करके इसको आप इस तरह से मोल्ड के अंदर डालेंगे। मोल्ड में डालने के बाद आपने अपने हाथ का बैक साइड लेना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि मोल्ड में चारों तरफ फैल जाए। इस तरह से प्रेस करने के बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर सेकंड प्रूफिंग के लिए या फाइनल प्रूफिंग के लिए प्रूफिंग चैम्बर में फिर से डालना है 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन जब आपने इसका ढक्कन लगाना है तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप इसका ढक्कन बंद ना करें, क्योंकि आपको प्रूफिंग के पता नहीं चलेगा कि पूरी प्रूफिंग हो गई है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा इसका ढक्कन खुला रखें ताकि जब इसका वॉल्यूम बिल्कुल इसके साथ टच होने लगे तो आप इसको बेकिंग के लिए डाल सकें। अब जब हम प्रूफिंग के लिए डाल रहे हैं तो हमारा बेकिंग का टेम्परेचर ओवन का हमें अपना सेट कर लेना है। जितनी भी नॉर्मल वाइट सैंडविच ब्रेड हैं वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाई जाती हैं।
तो हम अपने ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर लें और अभी ये डो प्रूफिंग के लिए, फाइनल प्रूफिंग के लिए जाए। ब्रेड हमने प्रूफिंग चैम्बर से बाहर निकाल ली है। अगर आप इस ब्रेड की ओर देखेंगे तो ये ब्रेड लगभग मोल्ड के साथ टच होने के लिए आ गई है। तो जब हम ये ब्रेड, हमें पता चल गया है कि इस ब्रेड की अब प्रूफिंग हो गई है और 2-3 मिनट बाद ये मोल्ड के साथ टच होने लगेगी, तो अब हमने इस ब्रेड का ढक्कन बंद कर देना है और इसको हल्के हाथ से बंद करना है और बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना है या दबाना नहीं है, नहीं तो जो हवा बनी है वो बैठ जाएगी। अब हम इस ब्रेड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड में ओवन के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये हमारा डबल डेक ओवन है, इसके अंदर 2 डेक हैं। अगर आप देखेंगे ऊपर और नीचे की तरफ, तो हम इसके ऊपर वाले डेक में इस ब्रेड को बेक होने के लिए डालेंगे। और द टेम्परेचर विच वी हैव सेट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर भी 2 नॉब्स होती हैं, ऊपर से टेम्परेचर देने के लिए और नीचे से टेम्परेचर देने के लिए। तो हीट दोनों तरफ से आती है। तो फिलहाल हम दोनों को सेंटर में कर देंगे, मतलब दोनों तरफ से बराबर हीट आए। और हम इस ओवन के अंदर इस ब्रेड को हल्के हाथ से आराम से डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। और अब ये 20 से 25 मिनट के लिए इस ओवन के अंदर रहेगी। और बेक होने के बाद कैसे बनकर आती है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारी वाइट ब्रेड बेकिंग के बाद आ गई है। अब आपने हल्के हाथ से किसी डस्टर से इसका ढक्कन खींचना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी मोल्ड गर्म होगा, तो आप इसका किसी डस्टर के सहारे इसका ढक्कन खींचिए और इसको इमीडिएटली आपने कूलिंग रैक पे डीमोल्ड कर देना। इस ब्रेड का कलर देखेंगे तो चारों तरफ से यूनिफॉर्म आया है जो कि गोल्डन ब्राउन है। और इसी तरह की ब्रेड हमें चाहिए कट कर। जब भी आपने सैंडविच बनानी है तो कोशिश करना है कि फ्रेश ब्रेड नहीं काटना है। कम से कम उसे 1 दिन के लिए आप छोड़ दें और 1 दिन के बाद आप उस ब्रेड को काटें। तो मैंने भी अपनी जो ब्रेड थी उसको 1 दिन का रेस्ट दिया है और 1 दिन के बाद आज मैं इस ब्रेड को काटूँगा। और जब भी आपने ब्रेड काटनी है तो उसके लिए सिरेटेड नाइफ यूज़ करना है। सिरेटेड नाइफ का मतलब है कि वो आरी के तरह उसके, जब भी आपने ब्रेड काटनी है तो आपने सिरेटेड नाइफ यूज़ करना है। सिरेटेड नाइफ का मतलब है कि उसमें आरी की तरह दांत होंगे। और इस नाइफ को चलाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। आप जब भी इस नाइफ को चलाएं तो आपने आरी की मोशन में ही चलाना है। हल्के हाथ से आपने ब्रेड को प्रेस करना है और इसको आगे पीछे की तरफ खींचते हुए ब्रेड को काटना है। अगर आप इस ब्रेड का टेक्सचर देखेंगे तो ये ब्रेड मार्केट की तरह बहुत बड़े बड़े इसके अंदर छेद आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने किसी भी तरह का इसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर या ग्लूटेन पाउडर का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और हल्के हल्के आपको उसके अंदर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, जो कि बता रहे हैं कि इस ब्रेड की क्वालिटी को अपने आप ही बता रहे हैं कि ये ब्रेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी है। थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कल इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आपको एक और ब्रेड का उत्पाद सिखाएंगे जो कि है ब्रेड स्टिक्स। और अगर ब्रेड स्टिक्स हैं तो नॉर्मली उसके साथ सूप तो जाएगा ही, तो हम ब्रेड स्टिक्स और आपको एक सूप के बारे में कल बताएंगे। थैंक यू।